ملتان میں گندم کی سرکاری خریداری شروع نہ ہونے سے کسان خوار۔ گندم کے منافع بخش قیمت نہ ملنے سے کسان پریشانی سے دوچار ہیں۔ کسان اپنی گندم سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں، ملتان میں گندم کی سرکاری خریداری شروع نہ ہونے سے کسان خوار۔ گندم کی منافع بخش قیمت نہ ملنے سے کسان پریشانی سے دوچار ہیں۔ کسان اپنی گندم سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ حکومت کی زرعی پالیسی کسان کے لیے درد سر بن گئی۔ سرکاری خریداری شروع نہ ہونے سے کسان اپنی گندم اونے پونے داموں فروخت کرنے پر مجبور۔ ملتان میں گندم کی گہائی جاری ہے، مگر کسان پریشان ہے کہ گندم کب، کہاں اور کس قیمت پر بیچے۔ کسان کہتے ہیں کہ فصل کی کاشت سے لے کر برداشت تک اخراجات کا پہاڑ کھڑا ہو گیا، مگر فروخت کی باری آئی تو منافع کہیں نظر نہیں آ رہا۔ فروخت کی تھی 1 مربع، تقریباً خرچہ ہے 1 لاکھ روپے کے ایکڑ پہ، اور ٹھیکہ بھی ہے 2 لاکھ ایکڑ کا سال کا۔ آپ دیکھ لیں کتنا خرچہ بنتا ہے سال کا۔ اگر یہ خرید نہیں کرتے لاکھوں روپے نقصان ہوگا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ گندم کا سرکاری ریٹ 3900 روپے فی من ہے، جو صرف ایک مذاق ہے۔ حکومت ہم سے گندم نہیں خرید رہی، خود کہیں بیچنے جائیں تو کوئی فی من قیمت 3000 سے زیادہ لگانے کو تیار نہیں۔ یہی سلسلہ جاری رہا تو ہم گندم کاشت کرنا چھوڑ دیں گے۔ جیڑی ہے گندم گڈی ہے اساں کہا کہ اساں حال اکٹھی کریں تے پے ساڈے کول جدن خریدن والے کوئی نہیں آیا، ریٹ ہی پورا نہیں دیندے تے نہ ساڈے کول کہیں پوچھیا تے حکومت ساڈے نال انج سمے ظلم ہی کریندی پئی ہے۔ گندم کی کٹائی مکمل ہونے کو ہے، کسان سے جڑا ہر شخص اپنی اجرت کا منتظر ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ موجودہ ریٹ میں زمین کا ٹھیکہ، کھاد، ڈیزل، مزدوری وغیرہ کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے۔ یہ سراسر نقصان اور قرضوں کا نیا بوجھ ہے۔ گندم کی بیجائی سے لے کر گہائی تک ہونے والے اخراجات کے بوجھ تلے دبا یہ کسان حکومت سے ایک ہی فریاد کر رہا ہے کہ خدارا اس اناج کی وہ قیمت لگائیں جو کسان کو مایوسی کی دلدل سے نکالے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ گندم کی سرکاری خریداری کا عمل ابھی تک شروع نہ ہو سکا۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کا کسان رول گیا۔ پروگرام نیوز نائٹ میں زرعی ماہرین اور پاکستان کسان اتحاد نے گندم کی خریداری شروع نہ ہونے کو حکومت کی بدنیتی قرار دے دیا۔ جنوبی پنجاب کا کسان گندم کی سرکاری خریداری شروع نہ ہونے سے پریشان۔ کسان تنظیموں نے احتجاج کی کال دے دی۔ پروگرام نیوز نائٹ میں گفتگو کرتے ہوئے صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکر کا کہنا تھا کہ گندم کی خریداری شروع نہ ہونا حکومت کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ کسان سے گندم نہیں خریدی جائے گی تو وہ اگلی بار گندم کاشت نہیں کرے گا، جس سے ملک میں خوراک کا بحران پیدا ہوگا اور اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ حکومت شہری اور دیہی آبادی کو تقسیم کر رہی ہے اور کروڑوں کسانوں کو ان کی محنت کا صلہ دینے کو تیار نہیں۔ بمپر خراب ہوئی ہے کہ ہم جشن منا رہے تھے، لیکن آج ہر کاشتکار کے گھر سو گئے کیونکہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن اس کو واپس نہیں مل رہی۔ کاشتکار برداشت کر لے گا، ملک برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، گندم کے بعد 2 میجر فصلیں آپ کی آ رہی ہیں اسی رقبے کے اوپر، گندم والے رقبے کے اوپر، ایک کپاس ایک چاول ہے، کاشتکار اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکے گا۔ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں۔ جس طرح کلرک ہڑتال کرتے ہیں قلم چھوڑ، تاجر کرتے ہیں شٹر ڈاؤن، صنعت کار کرتے ہیں وہ اپنا انڈسٹری بند کرتے ہیں، ہم بھی اسی طرح سوچ رہے ہیں انشاءاللہ بہتر اعلان۔ زرعی ماہر فیاض بھٹا پروگرام نیوز نائٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گندم کی خریداری شروع نہ ہوئی تو اس کا فوری اثر کپاس کی فصل پر ہوگا۔ کپاس کی پیداوار بری طرح متاثر ہوگی۔ نیکسٹ ہم گندم ہی کاشت نہ کریں، اتنی کاشت کریں جو ہمارے گھر کے لیے ضرورت ہے۔ جب صاف ظاہر ہے کہ جب ہم گندم کاشت نہیں کریں گے تو پھر پریشر تو گورنمنٹ پہ آئے گا نا، پھر وہ گندم بھی مہنگی ہوگی، مہنگائی مزید بڑھتی چلی جائے گی، انہیں باہر سے گندم منگوانی پڑے گی، اور اس لیے ضروری ہے کہ ابھی کاشتکاروں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ ایک طرف کسان گندم کی خریداری شروع نہ ہونے سے پریشان ہے تو دوسری جانب موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بارشوں، ژالہ باری اور تیز آندھیوں نے بھی فصل کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ میاں والی کی تحصیل ایسا خیل میں بارشوں اور ژالہ باری کے باعث گندم کی فصل کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ علاقے عرصے دراز ہوئے، کافی عرصے دراز ہوئے بارشیں شروع ہوئی، جہد ژالہ باری بھی آئی ہے، جہد سارا خلٹو بیلٹ، کمر مشانی، کالا باغ، ترا کلور، کچا اور کنڈول، جہد سارا کوئی نظام کونی ہون۔ جناب تھوڑے سامنے کنو کھلوتی ہے، کنو کپڑوں لے کی کونی کھلوتی، کنو جی کپیاں پہ کالیاں تھی گئی ہیں۔ وہاں صحیح تو بات بھی سارے کنو ہن گھندے پہ، لیکن جہاں انہیں اپنا رکھا ہوا سارے واسطے خزیرہ کر کے اساں اس حساب سے گھنا تو بات بھی ساکو وہ وارا نہیں کھاندے، کیونکہ سارا بہت زیادہ نقصان تھے۔
जिसकी वजह तो असां हुण बड़े परेशान हैं। सानल गवर्नमेंट तावन नहीं करती पई। असां गुजारिश करसां इस गल दा कि गवर्नमेंट सारे नाल तावन करे। प्रोग्राम न्यूज नाइट में बात करते हुए आम शहरियों ने सवाल उठाया कि किसान से गंदम सस्ते दामों खरीदी जा रही है, जबकि मार्केट में आटा अभी तक 105 रुपए फी किलो मिल रहा है। इन्होंने अपील किया है कि हुकूमत किसानों और आम शहरियों का भी कुछ ख्याल करे और उनको रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी इकदाम करे। न्यूज नाइट टीम के हमरा बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। मुल्तान ज़िला इंतजामिया सब्जियों फलों के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। आड़ती और दुकानदार अशरफ खुरोनोश की कीमतों पर नाजायज मुनाफा कमाने लगे। टमाटर सरकारी निर्ख 35 के बजाय 62 रुपए में दस्तयाब होने लगे। अदरक की मार्केट कीमत 600 रुपए फी किलो हो गए। चिकन और अंडे भी महंगे हो गए। मुल्तान में सब्जियों फलों के सरकारी और मार्केट निर्खों में फर्क बरकरार। मार्केट में थाईलैंड अदरक 600 और देसी लहसुन 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट जिसमें थाईलैंड अदरक 556 और देसी लहसुन 258 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। टमाटर के सरकारी नर्ख 35, मार्केट में 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मौसमी सब्जी भिंडी 320 से कम होकर 240 रुपए फी किलो हो गई। मार्केट में हरी मिर्च 120, प्याज 160 और आलू 80 रुपए हैं। मुख्तलिफ क्वालिटी और अकसाम के सेब 240 से 400 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। मौसमी फल तरबूज 100, खरबूज 160 और आड़ू 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। केले 160 रुपए फी दर्जन, लोकाट और पपीता 250 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। परचून मार्केट में चिकन 10 रुपए महंगा होकर 530 रुपए फी किलो हो गया। पार्ली अंडे 22 रुपए महंगे होकर 242 रुपए फी दर्जन हो गए। शहरियों ने जिले इंतजामिया से महंगाई कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के लिए खुशखबरी। मुल्क में गुज़िश्ता माह की निस्बत महंगाई में 0.43% कमी। इदारा शुमारियात ने महंगाई की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। अप्रैल में महंगाई कम करके 17.34% रही। महंगाई से सताई अवाम के लिए खुशखबरी। मुल्क में गुज़िश्ता माह की निस्बत महंगाई में 0.43% कमी वाक़या हुई। अप्रैल में महंगाई कम होकर 17.34% रही। मार्च में महंगाई की शरह 20.68% रिकॉर्ड की गई थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से अप्रैल तक महंगाई की औसत 25.97% रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई की शरह को मजीद कम करे ताकि आम आदमी की जिंदगी आसान हो सके। मियावाली में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। प्याज की कीमत आसमान से बातें करने लगी। शहर में प्याज 145 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। मियावाली में महंगाई की लहर बरकरार। 5 किलो प्याज की कीमत 750 रुपए तक पहुंच गई। 123 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 145 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि दिहाड़ीदार मजदूर महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। 800 रुपए दिहाड़ी लेने वाला मजदूर इतने महंगे प्याज नहीं खरीद सकता। दुकानदारों से महंगाई का शिकवा करें तो कहते हैं मंडी से माल महंगा मिल रहा है। छोटे दुकानदार हैं, ये कहते हैं हमें मंडियों से जैसे माल मिलता है तो हम तो उसी हिसाब से रेट लिस्ट के मुताबिक बेचते हैं। हमें तो किलो के साथ 5 रुपए मुश्किल से बचते हैं। आधे प्याज अंदर से खराब निकल आते हैं। तो जो पीछे जो बड़े डॉन हैं, जो बड़े डीलर हैं, उन्हें हुकूमत पकड़े, जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में रहे, जो मंडियों में जो है कीमतें कंट्रोल की जाए। शहरियों ने मजीद कहा कि हुकूमत बड़े डीलरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। मजबूरी है, मजबूरी के तहत लेते हैं। अब हमारी जो घरेलू अमूर खानादारी की ख्वातीन है वो भी तो नहीं मानती है ना भाई। प्याज के बगैर तो सालन बनना नामुमकिन है, बेशक जो भी सालन हो। तो मजबूरी अब ये प्याज की आप क्वालिटी चेक करें, किसी खाते की प्याज नहीं है। 750 रुपए के 5 किलो फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से प्याज की कीमत को कम करने के साथ रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। मुल्क में बढ़ती महंगाई से आवाम की कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर। गाड़ी और मोटरसाइकिलों की फरोख्त में भी बड़ी कमी। गाड़ियों की फरोख्त में कमी से महकमे एक्साइज को रेवेन्यू के हसूल में मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों की कीमतों में इजाफे से आवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई। गुज़िश्ता साल की निस्बत गाड़ियों की फरोख्त में 10,000 से ज्यादा की कमी हुई। जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक 54,099 गाड़ियां फरोख्त हुई। जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक 85,776 गाड़ियां फरोख्त हुई थी। जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक 14,299 जीपें फरोख्त हुई, जबकि जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक 25,122 जीपें फरोख्त हुई थी। अदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत गाड़ियों की फरोख्त में 10,000 से ज्यादा की कमी वाक़या हुई, जबकि मोटरसाइकिलों की फरोख्त में 91,000 से ज्यादा की कमी वाक़या हुई। गाड़ियों की फरोख्त में कमी से महकमा एक्साइज को रेवेन्यू के हसूल में मुश्किलात का सामना है। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुली भी महंगाई से परेशान है। रेलवे इंतजामिया कुलियों से 30% टैक्स वसूल कर रही है। कुलियों का कहना है कि सारे दिन की कमाई ठेकेदार को टैक्स देकर चले जाते हैं।
मुल्तान रेलवे कैंट स्टेशन पर काम करने वाले कुली भी महंगाई से परेशान। इंतजामिया कुलियों से 30% टैक्स वसूल कर रही है। कुलियों का कहना था कि ट्रेनों के किराए बढ़ने से रेलवे स्टेशन पर काम ना होने के बराबर है। जो सारा दिन कमाते हैं वो ठेकेदार को टैक्स देकर चले जाते हैं। काम ना होने और टैक्स देने की वजह से घरों में फाका कशी की नौबत है। 500 में 150 और 1000 में 300 रुपया टैक्स लिया जा रहा है। हम गरीब लोग हैं, महंगाई है, गुजारा हमारा बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे पास खाने को पैसे नहीं होते। 100 की सवारी ले तो 30 लेते हैं, 500 की सवारी ले तो 150 लेते हैं, 1000 की सवारी ले तो 300 लेते हैं। कुलियों का मजीद कहना था कि महंगाई के इस दौर में घर का खर्चा पूरा नहीं होता, टैक्स कहां से दें। इंतजामिया जुल्म कर रही है। 10% टैक्स होता है, लाख में 10,000 रुपया टैक्स, और बाकी जो पैसे इकट्ठे होते हैं फिर वो हर महीने रेंट हम जमा कराते हैं गवर्नमेंट को। रेल को जमा कराते हैं। वसूली इन बेचारे कुलियों से लेते हैं, जो मैं नहीं लेना चाहता। कुलियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कुली के ऊपर से टैक्स खत्म किया जाए। कैमरामैन एटी नवाज के साथ राना बिलाल, रूही, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको बताएं मुबारकपुर में गंदम कटाई के कदीमी मेले का आगाज महंगाई की वजह से मेले में रश न होने के बराबर है। शहरियों का कहना है कि रवां साल टिकटें बहुत महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से मेला वीरानी में तब्दील हो चुका है। मुबारकपुर में गंदम कटाई के सालाना कदीमी मेले का पहला रोज महंगाई के बहस मेले में रश न होने के बराबर है। शहरियों का कहना है कि इस साल टिकट बहुत महंगी है। 3 से 4 बच्चों को लेकर आए तो झूले भी नहीं झूल सकते। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल टिकटों के रेट में 50% इजाफा किया गया है। यहाँ पर कोई रश ना होने के बराबर है। जितनी महंगाई चल रही है, अब यहाँ पर देखें 500 रुपया टिकट है लकी रानी का, और झूलों का तकरीबन जो 20-25 रुपये हुआ करता था किसी दौर में, या पिछले साल की बात कर लें तो अब 100 से ऊपर है। शहरियों का कहना था कि लकी रानी सर्कस की टिकट गुज़िश्ता साल 300 रुपए थी, मगर इस साल 400 रुपए मुकर्रर है। बच्चों के लिए झूले झूलने की टिकट गुज़िश्ता साल 25 से 30 रुपए थी, लेकिन रवां साल 100 रुपए कर दी गई है, जबकि थिएटर की टिकट में भी 50% इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया टिकटों की कीमतों को कम करे ताकि आम आदमी भी मेले में मुख्तलिफ खेल देख कर लुत्फ अंदोज हो सके। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ दिलशाद जुया, रोही, मुबारकपुर। अब रुख करेंगे सादिकाबाद का। सादिकाबाद में THQ हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी वार्ड में दिल के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। कार्डियोलॉजी वार्ड के इंचार्ज ने शहरियों के एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। सादिकाबाद में THQ अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में दिल के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। इंचार्ज कार्डियोलॉजी वार्ड डॉक्टर मुजीबर रहमान का कहना है कि ऐसे मौसम में डिहाइड्रेशन होने से हार्ट अटैक का खतरा होता है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत करते हुए उनका कहना था कि गर्दोगुबार चेस्ट इन्फेक्शन का सबब बनता है, दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। कमजोर दिल वालों को इस मौसम में बहुत एहतियात करनी चाहिए। जो हम देखें ना, अगर तो दिल के मरीजों को मुस्तकिल दवाई खानी होती है, और जिस तरह का आजकल का मौसम है, इसमें पेशेंट के डिहाइड्रेशन होने का, पानी की कमी होने का चांस ज़्यादा होता है। और साथ ही क्योंकि आजकल जो है ना वो कटाई का मौसम चल रहा है, थ्रेशर सीज़न है, गिरदोगुबार बहुत ज़्यादा है, तो चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। जब भी पानी की कमी होगी तो जाहिर सी बात है जो दिल का अटैक है उसके होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इसमें एहतियाती तदाबीर ये है, एक तो दवाई प्रॉपर तरीके से खाएं, अपने सर को कवर करके रखें, धूप से बचें ज़्यादातर, और पानी का इस्तेमाल जो है ना वो वक्फे वक्फे से ज़्यादा करें ताकि इस तरह की बीमारियाँ कम से कम हों। डॉक्टर मुजीबर रहमान का मजीद कहना था कि दिल के मरीज डॉक्टर से चेकअप करवाएं और वक्त पर दवाई लें, गर्दोगुबार से बचें और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। दिल के मरीजों को अपने मुआलज से मुआयना करवाना चाहिए। डॉक्टर जो एहतियाती तदाबीर बताएं उन पर पूरी तरह अमल करें। कैमरा टीम के साथ मलक जुवैद, अनवर रोही, न्यूज़ सादिकाबाद।